So see, this is the spectrum of the compound. One indole, it is a heterocyclic compound indole. ईस्टर है इंडोल ईस्टर. सो व्हाट यू डू, आप लोगों को क्या करना है, इसके पीक्स लेबल करना है कि कौन सा पीक कहाँ पे आता है. एंड यस, कैन समवन टेल, कैन समवन टेल अबाउट दिस पीक. ये कॉर्टेट किधर से आया? यस, ये कॉर्टेट कहाँ से आया और ये ट्रिपलेट कहाँ से आया? सिर्फ मल्टीप्लेट देखना है आपको. यस, एनीवन फ्रॉम यू? और व्हाट इज दिस पीक रिस्पॉन्सिबल फॉर? यस, एनीवन फ्रॉम यू? नो? यस. नाइट्रोजन के बाजू में जो हाइड्रोजन है शायद वो सिंगलेट है. ये कौन सा है? यस, नो वन? सो दिस इज व्हाट एट 11 वैल्यू, 11 पर जो जाता है ना आफ्टर 8, वो हाईली एसिडिक जाता है. NH जो है, NH जो दिस NH, दिस विल अपीयर बिलो 5. ये रेंज में आता है, 5 टू यहाँ तक आता है वो. ये कोई भी NH और OH, ये जो H है, if it attached to OH or attached to NH, that will go to C. This is because of phenolic OH. Fine. This is because of phenolic OH. Remember this. Fine. And remaining peaks, you can, no problem, you can label them, but our issue, main target is this one, this triplet. This triplet. Our intent, our discussion, we want to focus this one. Yes. Who will tell about this? Yes. Who will tell about this? Yes. Who will tell? No? Okay, you can message also. Anyhow, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये triplet and quartet, you find out it. You find out it and you tell me these peaks are from which group? These peaks are from which groups? Okay, which group of this molecule? ये molecule से ये peaks कहाँ से आ रहे हैं? ये peak and this peak, so it will be easy for you. So it will build up your concept. Fine. Okay. Now go for next point. See, again there is a molecule. Again there is a molecule. If you think about this again, so can you tell me what is this reaction? Anyone from you? Can anyone tell what is this reaction? What is this reaction? Yes, very basic undergraduate chemistry. Yes, Bharat, can you tell about this? सर ये phosphorus की क्या reaction है? Yes, good. Yes, it is a phosphorus halide reaction. What is the job of this NaNH2 soda amide? Yes, this will abstract this proton. This proton abstraction takes place from by this. तो माइनस हो जाएगा. That will form the phosphorus halide, right? It will form phosphorus halide, halide of phosphorus, right? And that halide will attack where? This aldehyde, and it will form what? That will form a alkene. Alkene product will be formed. Alkene. Right. So our discussion is about these peaks which are appearing. Not this is okay, multiplet. We have no business with this. This is multiplet, but you can tell, no issue. You can tell that also. But what about these two peaks? ये जो peaks यहाँ appear हो रहे हैं, ये doublets है. ये doublets जो appear हो रहे हैं, this one and this one. You should be able to rectify all this. Okay, fine. So like this, there are many examples. So you can watch this later on. It is available after 30 minutes. Fine. Now let us go for another very good example for of coupling we can find in the pyridine. You see pyridine example here. Again, see. Let us see. Let me explain in a very short time. You see this H, green H,
will couple with this H because they are different, and this will couple with this, and like this. So this coupling will be J9 and this coupling will be J6. So why there is a difference between the coupling constant? Yes. What is the reason? Again, one more point we are learning here. Why there is a less J values? Till so far. So far we have discussed the many reasons why J value is lower, J value is higher. Here we have another example why the J value is higher here in this case between black colored hydrogen and red colored hydrogen, and while the red color in this H is a lower J value. So who will tell the answer for this? What do you think about it? Yes? cis hydrogen. No, there is no question of cis because we only discuss cis trans in अच्छा alkenes. हाँ, इसमें क्या रीजन है बोलिए? Can you see what is the coupling? पहले ये सोचना है आपको. What is the coupling? Yes, हाँ, निकिता, ऐश्वर्या. What is coupling? हाँ बोलिए बोलिए, आप भी बोलिए. कपलिंग यानी क्या? ये कौन सा फिनोमेना है? स्पेस फिनोमेना है या दिस इज द बॉन्ड फिनोमेना? ये स्पेस फिनोमेना है. स्पेस फिनोमेना है, बॉन्ड फिनोमेना नहीं. ठीक है? हाँ बोलिए आदिल. so 1,3 coupling. नो, ये 3J कपलिंग है. 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, हाँ ये दोनों की कपलिंग है और ये दोनों ही कपलिंग है. 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड. हमको क्या समझना है? आवर एम इज टू अंडरस्टैंड कि ये जे वैल्यू कम क्यों आया है, इसके ज्यादा क्यों आया है. तो आपको समझना है कपलिंग. हाँ बोलिए. यस यस एनीवन. सर जो ग्रीन हाइड्रोजन है ना उसके एडजेसेंट ओके बोलिए. sp2 नाइट्रोजन है और वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ओके ओके क्योंकि जो ब्लैक हाइड्रोजन है उसके बाजू में sp2 कार्बन है तो ओके, वेरी शायद गुड. उसका कुछ ओके ओके राइट. आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया है, लेकिन फायजा कैन यू इलैबोरेट इट? You are right. There is a nitrogen addition to this H, but what is the effect? हम वो चाह रहे हैं, हमको वो चाहिए. ये नाइट्रोजन का इफेक्ट क्या है? You are getting the point? हमको क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये, हाँ तो क्या होगा? यस वेरी गुड. ये नाइट्रोजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच लेगा. एंड रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर the coupling constant is the space phenomena, right? It is the space phenomena. ठीक है? और क्या होता है जब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच लेता है, ये जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच लेगा तो क्या होगा कि ये इसका सेंसेशन कम हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन क्लाउड के थ्रू ये सेंसेशन करता है, इससे ये क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा. जब वो कम हो गया ऑटोमेटिकली तो क्या होगा कि ये इसका स्प्लिटिंग भी कम होगा, कपलिंग कम होगा, सेंसेशन कम होगा. देयरफॉर automatically the value of coupling will be decreased, while in this case there is no such atom attached near this carbon, and this is the reason. Okay fine. ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं इसी. नेक्स्ट एग्जांपल में जाते हैं. ये आपको डब्ल्यू कपलिंग बोलते हैं, इसे 4 बॉन्ड कपलिंग भी कहते हैं. आप लॉजिकली बोलिए 4 बॉन्ड कपलिंग स्ट्रांग होंगी कि 3 बॉन्ड कपलिंग स्ट्रांग होंगी? 3 बॉन्ड कपलिंग. 3 बॉन्ड स्ट्रांग होगी तो वैल्यू इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम जो वैल्यू होगी. तो इसकी ज्यादा एग्जांपल नहीं मिलती है. बेंजीन रिंग में होता है और एलाइलिक में होता है, दो ही इसमें होता है, याद रखिए. 4 बॉन्ड कपलिंग इज पॉसिबल ओनली 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड. वन ऑफ देम इज व्हाट? द एरोमेटिक रिंग एंड एलाइलिक ग्रुप. जो साइक्लोहेक्सेन में हमने देखा है उन्हीं में होता है, राइट? सी एक्चुअली 4 बॉन्ड कपलिंग का जो जे वैल्यू होता है वो 0 होता है, एक्चुअली 0 होता है. लेकिन मेनी कंपाउंड्स जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एरोमेटिक कंपाउंड एंड हेयर एलिलिक कपलिंग्स, इनमें क्या होता है वो दे विल गिव यू सर्टेन वैल्यू, लेकिन ज़्यादा नहीं होती है. 0 से 3 के बीच में होता है. देख लीजिए, इसको जिगजैग कपलिंग भी बोलते हैं, इसको डब्ल्यू कपलिंग भी बोलते हैं, याद रखिए. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डब्ल्यू कपलिंग. ये देखिए, इसको डब्ल्यू कपलिंग भी बोलते हैं. यू सी डब्ल्यू कपलिंग दिख रहा है आपको? दिख रहा है ये डब्ल्यू कपलिंग भी बोलते हैं इसको, बिकॉज ये डब्ल्यू की तरह है. देखिए देयरफॉर इट्स कॉल्ड एज डब्ल्यू कपलिंग. इतना ही है. इसकी एग्जांपल्स अगर देखोगे आप तो देख लीजिए. सो मेटा कपलिंग भी बोलते हैं उसे. इट इज आल्सो कॉल्ड एज मेटा कपलिंग. तो अगर आप ये जो प्रोटॉन है HX, यू सी HX प्रोटॉन और ये HA प्रोटॉन है, अगर ये प्रोटॉन्स को देखते हो आप तो ये HX विल कपल विद दिस HA, इनके साथ में कपल होगा.
हाउ बाय डब्ल्यू कपलिंग, ये डब्ल्यू इस तरह बन रहा है, देख लीजिए डब्ल्यू कपलिंग. सो यू सी हियर, if you think about it, you see beta coupling is very common in aromatic compounds. Okay, you see in the left side example ये दिख रहा है आपको, only meta coupling is possible. दूसरी कोई coupling इससे possible है क्या? No other coupling is possible, only meta coupling is possible in this case. देख लीजिए दो आइडेंटिकल है, HA लेबल दिया है इसको, और उनका एक ही पीक आएगा स्पेक्ट्रम में और इसका एक पीक आएगा. मुझे बताइए आप, लोअर वैल्यू किसकी आएंगी, HX की आएंगी कि HA की पीक किसकी भी लोअर वैल्यू आएंगी किस प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट में? बताइए, HX और HA. यस सर HA की. HA की वाई? सर वो क्लोरीन के नजदीक. उल्टा बोल दिया आपने आदिल. और सर जब ये मिथॉक्सी जो है ना, ये HX है, दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के बीच में है, इसकी वैल्यू कम पर आएंगी, और इन दोनों की वैल्यू, क्योंकि दे आर नियर टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दे विल गो टू द हायर वैल्यू. अब ये HX इनसे कपल होगा, ट्रिपलेट देगा, और ये HA इनसे कपल होगी, क्या देगा, डबलेट देगा, और जे वैल्यू वो आएगी 2.5, 3 के नीचे आती है जे वैल्यू, याद रखिए. ठीक है, फाइन. यस, नाउ सी, देख लीजिए आप, देखो ये HA है ना, रेड कलर में कहाँ गया, हायर वैल्यू पे आया अराउंड 6.6, और ये कहाँ पर गया, ट्रिपलेट बिलो आया. समझ में आया आपको? यस, फाइन, ओके, राइट. सो दिस इज व्हाट अबाउट द discussion of today. We have discussed very good points.